हाय फोक्स, यूपीएससी क्लियर करना है तो करंट अफेयर्स भूल कर मत छोड़ना। क्या आप भी ये सुनकर थक चुके हो? क्योंकि कोचिंग सेंटर से लेके यूपीएससी टॉपर्स तक द फर्स्ट थिंग वी गेट टू हियर इज डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, मंथली करंट मैगजीन्स पढ़ो एंड इंपॉर्टेंट डेटा या इंफॉर्मेशन के नोट्स बना लो। बट अनफॉर्चुनेटली ये कोई डिस्कस नहीं कर रहा है कि फर्स्ट डे से ये सब हम रियलिस्टिकली कैसे स्टार्ट करें, कैसे डेली सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में पूरा करंट अफेयर्स कवर करें। और सबसे रेलेवेंट क्वेश्चन इज जो भी हम पढ़ते हैं वो एग्जाम तक कैसे याद रखें। दीज आर द रियल क्वेश्चंस व्हिच नीड आंसर्स, जो आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, सो दैट बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको और जगल ना करना पड़े एंड एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिले कि करंट अफेयर्स को रियलिस्टिक और यूपीएससी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना कैसे है। बिकॉज द ट्रूथ इज मोर देन 80 to 90% एस्पिरेंट्स ना हार्डली 2-4 महीने तक ही रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एंड आफ्टर दैट दे सोलली रिलाई ऑन कोचिंग सेंटर्स मंथली करंट मैगजीन्स। एंड डू यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज? Even UPSC knows this very well. That's why let me show you some proof how UPSC eliminate candidates with utmost ease. See this PDF. It contains some 2025 prelims questions which were simple, direct and easily answerable. But only if, mind it, only if you read newspapers on a regular basis and you have the general awareness about what's going around. But when you'll go through the discussion of this year 2025 prelims paper, you'll find everywhere that majority of aspirants couldn't answer these questions. Why? Because they kept blindly relying on coaching centers ka monthly current magazines and they ignored newspapers. So the first thing, the first lesson that UPSC itself wants to make absolutely clear to us is that don't blindly rely on current affair magazines and don't ever think to skip newspaper if you are thinking to clear UPSC. ठीक है? But yes, before we move ahead, we all know that prelims is over and now is the time for mains preparation. यही time हमारे लिए golden window है to start and master answer writing. Because let me tell you, mains exam ना अब सिर्फ knowledge का game नहीं रह गया है, but rather it has become the pure game about how you express your knowledge under pressure in just 250 words within those 7 minutes in the exam hall. See, you will also relate to this कि बहुत बार ना हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, कंटेंट हमें अच्छे से आता है, बट स्टिल हम उसे सही तरीके से कम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते. And this is exactly where we need the daily answer writing practice, for which I will suggest you textbook Pass Ali program, जहाँ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को भी एड्रेस किया जाता है टू ब्रिंग दैट वेरी एक्स फैक्टर इन योर प्रिपरेशन. Not only this, you will also get here last 6 years mains solve previous year questions apart from the 20 mains test just to analyze your performance. Here also you will be provided with the daily newspaper editorial analysis as well, which is actually considered the backbone for your entire mains preparation. So इस program को अभी join करो as the sale is going on using my code THINK22 to get straight 10% discount. Link और code description में mentioned है. So join the program and feel the difference yourself. Okay, so now let's see that how as a beginner जिसने कभी न्यूज़पेपर कोई मैगजीन ना पढ़ी हो या ट्राई करने पर भी 4-5 घंटे लग रहे हो, तो how we should realistically start reading current affairs within those 1.5 hours practically on the daily basis, how we should take that first step. Let's understand this as this holds the key to your entire UPSC preparation. So as a beginner, the first thing first is that you will never read the entire newspaper end to end. And always avoid any sort of political news की like बिहार इलेक्शन में अभी किस पार्टी को कितनी सीट्स मिली हैं, या किसी भी तरीके की सिटी न्यूज हो, या फिर कोई भी गॉसिप टाइप की न्यूज हो लाइक बॉलीवुड में आजकल क्या चल रहा है एंड सो ऑन. ये 3 तरीके की न्यूज आपको टोटली अवॉइड करनी है, ठीक है. एंड इंस्टेड व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू चूज एनी वन न्यूज़पेपर एंड स्टिक टू दैट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन एटलीस्ट टिल द टाइम you write your mains exam. Why I am saying so, I'll tell you this later on, I'll explain this. लेकिन अभी आपको जो शुरुआत करनी है ना, आपने अभी तक कुछ भी करंट नहीं पढ़ा है या आप न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, ट्राई टू फॉलो दिस सिस्टम विच आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, ठीक है. व्हाट यू हैव टू डू इज दिस, सबसे पहले कोई भी एक न्यूज़पेपर चूज कर लो अमंग द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. आई विल रिकमेंड द हिंदू, ठीक है. सपोज करो आपने द हिंदू न्यूज़पेपर ही पढ़ना स्टार्ट किया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू दिस, स्टार्टिंग के 5 मिनट्स, बस 5 मिनट में ना पूरे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को गो थ्रू कर लो, समझ तो लो कि आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या न्यूज आई है. जस्ट स्कैन द हेडलाइंस.
जब आप एक बारी पूरा हेडलाइन स्कैन कर लोगे, जब आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ आज के पेपर में क्या क्या है, तब आपको अपने आप समझ में आएगा कि यार जीएस रेलेवेंट कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इकोनॉमी में किस बारे में डिस्कशन हो रहा है, क्या कोई सेमीकंडक्टर पे न्यूज है क्या, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फॉर एग्जांपल न्यूज दी है, या फिर किसी कमेटी की कोई रिकमेंडेशन के बारे में बात हो रही है, या फिर अभी जो रीसेंट सिक्योरिटी इशू के ऊपर जो अभी दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके ऊपर कोई न्यूज दी हुई है कि किस तरीके से क्या क्या मेथड्स वो यूज कर रहे हैं इन टैकलिंग ऑल दोस सिक्योरिटी इश्यूज। तो आपने ये कुछ 4-5 न्यूज फिगर आउट कर ली, देन व्हाट यू हैव टू डू इज विद इन नेक्स्ट 20 मिनट्स, दैट इज फ्रॉम 5 मिनट्स टू 25 मिनट्स, मैंने यहाँ जो लिखा हुआ है टाइम पीरियड, you will read only those news which interest you and which are GS relevant as well। आपको सारी न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वो न्यूज पढ़ो जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है और आपके जीएस पेपर में काम आ सकती है। इतना आप ना बिना मेंस का सिलेबस पढ़े भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि पहले आप 4-5 दिन लगा के पूरा सिलेबस रट डालो उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आई थिंक दैट्स अ वेरी क्लीशे वे टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। वो कभी भी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज आप हमेशा ना फिर एक बहुत ही कंपैक्टेड माइंडसेट, कंसोलिडेटेड माइंडसेट से ही ढूंढोगे कि यार ये हेडलाइन जो है इस सिक्योरिटी वाले इशू में फिक्स हो रही है या नहीं हो रही है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर कोई न्यूज़ है क्या वो रेलेवेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस से पहले जाके मैच करोगे, फिर तुम पढ़ोगे, तो इसी में ही पूरा टाइम निकल जाएगा, फिर तो हो चुका तुम्हारा न्यूज़पेपर खत्म 1.5 घंटे में। What I'm telling you is this, instead of that what you can do is अभी इस चीज को समझ लो, because it is going to save hell lot of time while reading करंट अफेयर्स। चाहे न्यूज़पेपर उठा लो चाहे करंट मैगजीन उठा लो, दोनों ही बेसिस में बता रही हूँ मैं, ठीक। तो आपने इंटरेस्ट बेस्ड जो भी आपको 5 न्यूज इंपॉर्टेंट लगी सारी हेडलाइंस गो थ्रू करने के बाद, उसमें से सपोज करो आपने कोई भी 2 न्यूज पढ़ी जो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट लगती है और जो जीएस रेलेवेंस भी मेंटेन करती हैं, आपने वो पढ़ी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स, आप सपोज आप अगर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको रात में ये काम करना है, बिफोर यू स्लीप व्हाट यू हैव टू डू दिस, 15 मिनट आपको देने हैं डेली करंट अफेयर्स को, जो वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट पे आता है, ठीक है। उसमें से भी ऐसा नहीं है कि तुम 2-3 जो है वेबसाइट्स फॉलो कर रहे हो रेगुलरली, नहीं, कोई भी अपने मनपसंद की एक उठा लो। मुझे सबसे बेस्ट इनसाइट आईएएस लगती है, बिकॉज यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो भी पूरा डेली बेसिस का न्यूज है ना, वो बहुत प्रॉपरली डिफाइंड है कि मेंस के किस सिलेबस हेड के अंदर आज कौन सी न्यूज किस न्यूज़पेपर में आई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़नी चाहिए। न्यूज इसमें आपकी सिर्फ न्यूज़पेपर से नहीं होती, पीआईबी पीआरएस सब तरीके से इंक्लूडेड होती है। अच्छा, एक जो डाउट रहता है कि अगर कोई हिंदी मीडियम से प्रिपेयर कर रहा है तो फिर वो क्या फॉलो करे, बिकॉज इनसाइट्स आईएएस का जो न्यूज है वो इंग्लिश में रहता है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस। वहां पे डेली बेसिस में आपका डेली करंट अफेयर का न्यूज रात में अपडेट होता है उस दिन भर का, उसको आप हिंदी में आराम से पढ़ सकते हो। इनफैक्ट दीज आर माय 3 रिकमेंडेशंस, इनसाइट, दृष्टि, विजन आईएएस। आप इन तीनों में से कोई भी एक फॉलो करिए और 15 मिनट दीजिए, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट दो, एक बार ये गो थ्रू करो कि ठीक है आज के दिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज कहाँ से थी और किस मेंस के सिलेबस हेड के अंदर ये कवर होती है, ठीक। देन उसके बाद आपको क्या करना है, रात में ही वंस यू आर डन विद दिस डेली करंट अफेयर्स, हर इन्हीं तीनों की वेबसाइट्स पे जा करके ना करंट अफेयर बेस्ड क्विज आती है डेली बेसिस पे, उसको जा करके आप सॉल्व करो। गिव नेक्स्ट 15 मिनट्स टू दैट, एंड उसमें भी आपको सिर्फ किसी एक की करनी है। आप इनसाइट्स की कर लो, दृष्टि की कर लो, या कोई भी कॉम्बिनेशन तुम बना लो कि अगर तुम इनसाइट्स आईएएस से डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो विजन आईएएस से जाकर के डेली करंट अफेयर का क्विज तुम प्रैक्टिस करो। यू कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, लेकिन आई विल रिकमेंड कि एक ही करो, फालतू पे इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है एज द बिगिनर, ठीक। अब 15 मिनट आपने जो है ये इस तरीके का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो पूरी क्विज है इसको आप स्टार्ट करोगे, 15 मिनट का टाइमर लगा करके इसको सॉल्व करोगे, इसके सॉल्यूशंस गो थ्रू कर लो विद इन दोस 15 मिनट्स, दैट्स इट। अब आपने क्या कर लिया है, रात तक आपने डेली न्यूज़पेपर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपको लगती है वो आपने गो थ्रू कर लिया, आपने कुछ हेडलाइंस गो थ्रू कर ली। अच्छा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त एज अ बिगनर क्या होता है, कई बार हमें ठीक है इन्फॉर्मेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है पर यार हमें उसका कोई बैकग्राउंड सीक्वेंस पता ही नहीं है, तो हम नेट पे बैठ के गूगल कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, 2-2 घंटे लगा रहे हो एक न्यूज का पूरा बैकग्राउंड समझने के लिए। वो काम करने की जरूरत नहीं है, वो काम आपका ये जो मैं बता रही हूँ ना कि डेली करंट अफेयर्स जाकर के पढ़ो, इन 3 वेबसाइट्स में से किसी एक पे जाकर के पढ़ो, ये काम आपका आराम से कोचिंग इंस्टीट्यूट डेली बेसिस पे कर रहे हैं। सो व्हाई यू हैव टू वेस्ट योर टाइम, वहां जाकर पढ़ो, वहां पे आपको पूरा बैकग्राउंड मिलेगा। उसके बाद आप जो पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे उसी का ही आप क्विज बेसिस पे सॉल्व कर रहे हो करंट अफेयर्स। जब आप क्वेश्चन की फॉर्म में सॉल्व करते हो ना कोई भी चीज जो आपने पढ़ रखी है तो वो आपको माइंड में रिटेन रहती है। बेसिकली क्विज सॉल्व करने का मतलब मेरा ये है कि आप इनडायरेक्ट रिवीजन कर रहे हैं जो आपने पढ़ा है, आप टेस्ट कर रहे हैं कि जो आपने पढ़ा उससे आपने कितना समझा, वो आपको कितना याद है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, रिवीजन नोट्स।
हर एक न्यूज के नोट्स पहली बात तो बिल्कुल नहीं बनाने हैं। जो नेक्स्ट उसके बाद आपके 15 मिनट्स होंगे उसमें आपको माइक्रो नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जो भी आपने तीनों चीजें कवर कर ली हैं, क्विज भी कर ली, वेबसाइट से जाके करंट अफेयर्स का समरी भी पढ़ लिया और डेली न्यूज़पेपर को भी गो थ्रू कर लिया। अब आपको जो भी डेली बेसिस पे 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं, 2 या 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज लगती हैं उस पे बस अपने 4-5 पॉइंट्स के बुलेट नोट्स आप प्रिपेयर कर लो। अभी वो मैं आगे बताऊंगी भी कि कैसे करना है वो चीज भी, डोंट वरी अबाउट दैट। बुलेट पॉइंट्स आप डेली बेसिस पे लिख लो। ठीक, अब ये जो 4-5 बुलेट पॉइंट्स है इनको आप वीकली बेसिस पे 1 घंटा देकर के पूरा रिवाइज कर लो कि भाई सैटरडे या संडे को मैं बैठी हूँ, अब जो पिछले 1 हफ्ते का जितने भी मेरे 4-5 बुलेट पॉइंट्स मैंने हर दिन के लिखे हैं अलग अलग न्यूज के लिए, उनको मैं आज 1 घंटे में पूरा रिवाइज कर लूंगी। दैट्स इट। ये हो गए आपके रिवीजन नोट्स जो आपको माइंडेड ना प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी काम आएंगे एंड इनफैक्ट इंटरव्यू में भी काम आएंगे। दिस इज विद माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 6-7 ईयर्स। मैं आपको ये चीज बता रही हूँ बिकॉज सब जगह आपको वही बेसिक रैंडम क्लीशे मेथड बताया जाता है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, आप वो बोलेंगे आप हमारी मैगजीन पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, 2-2 पढ़ लो। ऐसे नहीं होता है ना, 2-2 न्यूज़पेपर पढ़ के करोगे क्या जब कुछ याद ही नहीं है। पर्पस क्या है हमारे इस वीडियो का कि हमें याद भी तो रहना चाहिए ना यार जो हम चीजें पढ़ रहे हैं। तो आपको याद कैसे रहेगी कि आप क्विज लगा रहे हैं एंड आप रिवीजन नोट्स बिल्कुल बुलेट फॉर्म में प्रिपेयर कर रहे हैं जो आपके एक्चुअल आंसर राइटिंग में, इंटरव्यू में, प्रीलिम्स के एग्जाम में हर तरीके से आपको हेल्प करे। ऐसा नहीं है कि आप बस 10-10 पेजेस का पूरा ग्रंथ लिखे जा रहे हो, डेली आप 10 पेजेस की न्यूज लिख रहे हो, महीने भर के बाद जाके आपके 300 पेजेस के नोट्स बन गए 1 महीने के। कोई सेंस नहीं है ना उस बात का। तो इस चीज को समझो। देन इसके बाद आप क्या करना है, देखो बीइंग बिगनर आपको तुरंत स्टार्ट नहीं करना है मंथली मैगजीन पढ़ना। इसको आप स्किप कर सकते हो। आप इसको 10-15 दिन जब आप यूज टू हो जाओ इतना करने के, जो फर्स्ट 4 स्टेप्स है, जब आप 10-15 दिन में यूज टू हो जाओ उसके बाद आप मंथली मैगजीन ऐड ऑन करो। टिल द टाइम आपने बस जस्ट स्टार्ट किया न्यूज़पेपर पढ़ना, आप समझना चाहते हो कि करंट अफेयर्स कैसे होता है, क्या इसमें चल रहा है आजकल, आपको इश्यूज को समझना है, उसको एनालाइज करना है स्टार्टिंग से ही, तो आप ये फर्स्ट 4 स्टेप्स तक रिस्ट्रिक्ट करो एटलीस्ट फॉर स्टार्टिंग ऑफ योर 10-15 डेज। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मंथली मैगजीन उठा लो एंड डेली बेसिस पे 20 मिनट उसे दो। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना 70 to 90 मिनट्स, ये जो 20 मिनट का स्लॉट है ये आप उसे दो। यहाँ पे आप उसको भी सब्जेक्ट वाइज पढ़ो। ऐसा नहीं है कि हम जनवरी का लेकर के बैठ गए और हम पूरी जनवरी की मैगजीन खत्म कर रहे हैं उसके बाद जाकर के हम फेब का खत्म करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको ठीक लगती है उसका पढ़ो। माय पर्सनल रिकमेंडेशन विल बी ऑफ विजन आईएएस कि आप उसका मंथली करंट अफेयर्स पढ़ें एंड उसमें भी आपको क्या करना है सब्जेक्ट वाइज, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, सब्जेक्ट प्रायोरिटी भी मैं आपको दिखा देती हूँ अभी यहीं पे। सबसे पहले आपको पॉलिटी का न्यूज पढ़ना है। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है कि हमें कहाँ से कवर करना है, तो आपको जो करंट अफेयर्स है वो कवर करना है जैन 2025 से, इफ यू विल बी अटेम्प्टिंग यूपीएससी इन 2026। ठीक है, अगर आप 2027 में अटेम्प्ट करने का प्लान कर रहे हैं तब आप जो है जनवरी 2026 ऑनवर्ड्स से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करो। 1.5 साल से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, 1 से 1.5 साल इज एब्सोल्युटली सफिशिएंट। ठीक, तो अब इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप पॉलिटी के, फॉर एग्जांपल आपने अभी तक कोई भी मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी है तो अब आप सबसे पहले पॉलिटी उठाइए। पॉलिटी को आप टारगेट रखिए, हर सब्जेक्ट को टारगेट रखिए कि मुझे मैक्सिमम 15 दिन ही देने हैं, उससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। टारगेट करो कि 10 दिन में ही खत्म करो। अब जैन से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक के जितने भी पॉलिटी की न्यूज है मंथली मैगजीन में उनको एक साथ पढ़ डालो। पर्पस ये है एक साथ पढ़ने का सब्जेक्ट वाइज कि आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या करंट इश्यूज चल रहे हैं, उनका क्या कॉज है, क्या इंपैक्ट है, क्या सॉल्यूशंस है, क्या स्कीम उसके अंदर जो है जा रही है जो यूज कर सकते हो आप फ्रीक्वेंटली अपने आंसर्स में, अपने एसेज में, कहीं पे भी। बेसिकली क्या होता है जब हम बहुत स्कैटर्ड वे में न्यूज पढ़ते हैं ना कि सेम डे पे पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी भी पढ़ रहे हैं, आईआर भी पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट भी पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ तो सब रहे हो बट यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ सेंस आउट ऑफ इट, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर ऑल दोज न्यूज इन अ कोहेरेंट वे। अनमाइंडेड जो पर्पस ये है कि हमें लंबे समय तक रिटेन करना है। तो जब हम एक सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं, उसकी न्यूज को पूरा समझते हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की न्यूज आपको मिलेंगी, तब आपको उनका समिशन समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, इंडिया की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ट्रेड के रिस्पेक्ट में एंटायरली इंडिया में, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, किस तरीके से इंडिया का ये जो एक आपका मेंस का टॉपिक भी है कि किस तरीके से इंडिया का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इंडिया के इंटरेस्ट पे जब बात आती है, वर्ल्ड में कोई भी इवेंट होता है, उसको आप कैसे आंसर कर पाओगे वो आप तभी समझ पाओगे जब आपने सब्जेक्ट वाइज चीजों को कवर किया हुआ है। बिकॉज तब आप ना अलग अलग तरीके से डिमेंशंस निकाल सकोगे, बिकॉज आपका माइंड बहुत शार्प और क्यूरेटेड वे से चलेगा। तब समझ रहे हो मेरी बात को? इस सिस्टम को एक बार करके देखो, यू विल फील द डिफरेंस।
तो आपको एक सब्जेक्ट को मैक्सिमम 15 डेज देने हैं एंड टारगेट करना है कि यार आप डेली कम से कम 5 से 10 पेजेस तो 100% पढ़ो 20 मिनट में आपको इतना कवर करना है। तो टिल 90 मिनट्स इस तरीके से पूरा सिस्टम है कि आप अपना पूरा करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रही हूं मैं माइंडेड, पूरा करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर के अलावा डेली न्यूज़ जो आती है उसकी क्विज की प्रैक्टिस, आपके नोट्स जो अपने बनेंगे एंड जो डेली करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, कोई रेलेवेंट स्कीम है या आप तो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो लेकिन 10 अलग न्यूज़पेपर्स में, पीआईबी, पीआरएस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, तो वो आप एक साथ खुद से कवर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बहुत अच्छे अच्छे बंदे रखे हुए हैं जो आपके लिए यही काम आपको करके दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, सो यूज दैट ना, यूज इट स्मार्टली। तो इस सिस्टम को फॉलो करके एक बार ही देखो, दैट आई विल सजेस्ट यू। अब जो है बात करें नोट्स की कि रिवीजन नोट्स बनाने कैसे, तो देखो कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है आपको पढ़ते वक्त ही दिख जाएगा कि यार ये तो प्रीलिम्स बेस्ड है, उसमें बेसिकली आपके शॉर्ट फैक्ट्स हो सकते हैं, जो भी डेटा लिखो माइंडेड वो गवर्नमेंट बैक डेटा हो, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिगार्डिंग हो गया, या सीवीसी ने कोई डेटा दिया है, या एनसीआरबी का कोई डेटा आया है, जो गवर्नमेंट बॉडीज है, बेसिकली सेमी गवर्नमेंट बॉडीज है या गवर्नमेंट बैक डेटा है, that is the only data which you have to write in your mains answer or you have to quote in your interviews, and probably that will be only asked in your prelims exam as well. This I am telling you with my experience. तो गवर्नमेंट बैक डेटा हो गया, कोई इंपॉर्टेंट स्कीम हो गई, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट में, या किसी भी तरीके की कोई इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हो गई, किसी डेफिनेशन या टर्मोलॉजी के बारे में कोई चीज आ गया, वो आप बनाइए फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 5 से 6 लाइन से ज्यादा का कोई नोट नहीं होना चाहिए ऑन एनी पर्टिकुलर न्यूज, और उसमें भी आपको 4 एस्पेक्ट्स कवर करने हैं कि इशू क्या है, उसका कॉज क्या है, उससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा एंड उसका सोल्यूशन क्या है, दैट्स इट। एंड इसको भी कोशिश करो कि इतना पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है आपको, फ्लो चार्ट्स है, माइंड मैप्स है, डायग्राम्स है, उस फॉर्म में लिखो, ताकि तुम्हारी आज से, अभी से, इसी समय से स्टार्ट हो सके प्रैक्टिस फॉर योर आंसर राइटिंग ऑल्सो। जो हम सोचते हैं ना आंसर राइटिंग कब करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। और नोट्स के लिए ऑलरेडी आपको मैंने ऊपर बताया हुआ है कि डेली बेसिस पे आपको सिर्फ 15 मिनट ही इन्वेस्ट करना है, नॉट एट ऑल मोर देन दैट, माइंडेड। तो इस सिस्टम को फॉलो करके देखो एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या करंट अफेयर्स को इस तरीके से पढ़ने में, कि क्या आपको कोई डिफरेंस फील हुआ, आपको कुछ क्या कोई किसी भी तरीके का एडवांटेज मिला, कोई बेनिफिट मिला इस सिस्टम को फॉलो करके फॉर करंट अफेयर्स। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो इटसेल्फ। उसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है करंट अफेयर के रिगार्डिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एंड हाँ, जाने से पहले वन मोर थिंग, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, यूपीपीसीएस के ऊपर चाहिए क्या, डू लेट मी नो अबाउट दैट सो दैट आई विल प्रिपेयर द वीडियोस अकॉर्डिंगली फॉर यू। Okay, so take care, prepare well, work hard, use all your potential for your dreams. बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।